Hello, and welcome back to Khel Now TV. We are back with another episode of What's Trending in Indian Football. थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज इंटरनेशनल ब्रेक था पिछले 2 हफ्ते से ये शो हम शूट कर नहीं पाए, तो बहुत सारी न्यूज़ है, बहुत सारे रिजल्ट है डिस्कस करने को. आईएसएल का गेम वीक अभी तक खत्म हुआ नहीं है, तो अभी तक जितने मैचेस हुए सारे डिस्कस करेंगे. पर न्यूज़ और रिजल्ट से पहले शुरू करते हैं. इंडिया अंडर 17 मेंस के रिजल्ट आए हैं, ऑफकोर्स उनके बिफोर देयर एएफसी एशियन कप कैंपेन. थाईलैंड के साथ 2-2 ड्रॉ खेला 25 मार्च को. इंडोनेशिया को 3-0 हराया 28 मार्च को. एंड देन कोरिया रिपब्लिक के साथ 2-1 लॉस, बहुत क्लोज लॉस. थॉट्स ऑन दिस परफॉर्मेंसेज एंड इनसाइड ऑफ दिस कैंप और जो ये फ्रेंडलीज अभी चल रहे हैं. अभी by the way, after this team is traveling again to Thailand, so वहाँ पे UAE under 17 के against 2 friendlies match होने हैं, which I think they're traveling on 14th या 15th April को इंडिया से निकल रहे हैं उन 2 मैचेस के लिए. Yeah, coming back to these games, because they were the closed door games, so you can't say much. You have to go by जो आपको सुनाई दे रहा है from the coaching staff or from the team camp. Performance have been very decent, that's what I heard. Even against South Korea, who didn't concede single goal against Indonesia. They scored 6 or 7 against Indonesia. They defeated Thailand 2-0. And India kind of went head to head with them, even scored a goal, and it was a close match. India could have won that game. We have some clear cut chances. It's just that their goalkeeper saved those chances also. So I think, but again, we can't go much into details in terms of result, performance. I think it's all about preparing for that AFC Asian Cup, Under 17 Asia Cup in Saudi, and I think focus should be there, and I'm glad that AIFF is arranging these kind of matches for the India Under 17 team. You also have to see that India Under 17 team is top 10 team in Asia at Under 17 level. Yep. So I am sure everybody wants to play us. Because they are just like us, they are also preparing for the Asia Cup, and I think, and of course with Bibiano back at the helm at the Under 17 team, the expectations from fans are very high, because we see our senior women's team struggling. They didn't qualify for the World Cup or the next round. Under 20 team kind of struggling also. Under 17 women's team is left, and this team is left. I think that's our only hope in the current cycle to do well in the Asia Cup, because our other men's team have not qualified. Hoping that Bibiano use this game to fine tune his team selection, his tactics, his playing 11. I have seen him implementing a new playing style since those Turkey matches when he played in Turkey. That playing style which is building from back, playing short passes, showing some patience on the ball. So I think that will also take some time, and I think he's glad that he's getting these kind of matches to continue to develop that playing style. Let's see by the time Asia Cup come where we are. Yep. So still all the best to them for their upcoming friendlies in Thailand, as you said, and for the AFC Asian Cup. Hopefully ये टीम जाके आगे कुछ अच्छा करे, आगे बढ़े. तो इंडियन सीनियर टीम का फाइनल AFC एशियन कप क्वालिफायर्स था, मेंस टीम की बात कर रहा हूँ. 2-1 हमने जीता अगेंस्ट हांगकॉन्ग. रायन विलियम्स स्कोर्ड ऑन हिज डेब्यू. गुड परफॉर्मेंस बाय द टीम ओवरऑल. सिर्फ रायन विलियम्स पे बात करें तो वॉज इन द लीग above everybody, made things happen, got substituted in the 64th, 65th minute, but still a very good debut for him. I think, of course, fans were looking forward to see him, especially Indian football fans. But I think his debut made some headlines. Yeah. Could see some random Indians talking about the match. Of course, not Indians. They're more of a, how to say, social media influencer. They see what's trending and they start speaking about it. Yeah. And so I think glad he finally got chance to wear the Indian jersey. It was a very emotional moment to see him sing Indian national anthem, and to get a goal, and of course it's a great, considering the sacrifice he has done to get that passport to play for India. And I think, of course, he will be a bit gutted that he didn't get a chance to influence India's Asia Cup का जो हमारा campaign था. अगर वो पहले आ जाते before एक मैच पहले या 2 मैच पहले, he might have helped India to qualify for the Asia Cup. But I think maybe Ryan Williams, because when Arata Azumi did it back in 2012, internet इतना popular नहीं था, social media इतना popular नहीं था. Maybe now with Ryan Williams' sacrifice and the move, I think he might inspired a next generation of Indian origin player outside India to play for India. And I think still hopefully keep himself fit and give us 3 or 4 year
top level football. You know, we've seen Sunil Chhetri's Still number. just 33, so yeah, good. We've seen few the Sunil years there. Chhetri's number, you know, what he did after 32, and you know, I think he will be very hungry to do well for India and to make his mother proud and you know make his grandparents also proud. वो भी एक बड़ी इमोशनल एंड यू नो मोटिवेशनल है उनके लिए कि टू मेक अपने ग्रैंड पेरेंट्स का सपना पूरा कर रहे हैं. एंड आई थिंक हिज फोटो गॉट 1 million likes on Instagram. So that's tell you all the potential football have. It's just that we want to hit the right nail, you know, at the right time, and hopefully football can continue. होपफुली आगे अच्छे और खेलते हुए दिखेंगे इस जर्सी में. आगे बढ़े तो इंडियन अंडर 17 वुमेन्स टीम के फ्रेंडलीज अनाउंस हुए हैं. 3 फ्रेंडलीज खेलेंगे हम रशिया के अगेंस्ट उनके घर पे. उसी की आपकी परमेला ने स्क्वाड भी अनाउंस कर दिया, आपकी स्क्रीन पे आ गई होगी. 11 तारीख को, 14 तारीख को, 17 अप्रैल को 3 मैचेस हैं इन सोची. गुड फ्रेंडलीज, गुड प्रिपरेशन yet again for this team. Yeah, but Russia is banned in terms of football, right? So we don't know, you know, where they are right now. But I think, of course, the Russian team is still very strong. So hopefully, you know, there is no any kind of a delay or anything in terms of their flight or coming back to India, going to Russia. And I think, you know, good preparation, but really want them to play some Asian countries. I think that's where your actual opponent are. And you know, I think just like under 17 men's team or boys team, under 17 girls team should also play you know, our Asian countries, because that will give you actual idea that where we are standing in terms of competition, in terms of quality जो भी हमारे अंदर है. ये under 17 team आपको याद होगा, before Pamela Conti came, they played under 20 SAF championship and they won it, by the way. You know, and so this batch is special, this team is special. And then, you know, recently they played the friendly games also, where they look very good in terms of playing style. And you know, you can see that Pamela against Myanmar, so you can see Pamela Conti had her impact on the team in terms of performance or the playing style जो वो develop करने की कोशिश कर रही है. And I think good 3 games to check her team, her bench strength and everything before, you know, she can also finalize her squad for the qualifier for the Asia Cup. आगे बढ़े तो क्रिस्पिन छेत्री of course helped us or was the leading man behind our qualification to the AFC Women's Asian Cup, then was replaced by Valverde. Now with Valverde out of the picture, again he is the women's team head coach, and by the looks of things he will be leading us for the FIFA series and for the foreseeable future as well. For the SAF Championship, SAF Women's Championship, which is going to take place in Goa, for which Pakistan unlikely to come, so teams are already less in that. But yeah, Nepal, Bangladesh still is quite a competition in women's football in South Asia. अच्छा competition रहता है Nepal, Bangladesh के against. I don't know how. See, what happened with Crispin was not fair, I will tell you. But then this is the same technical committee who appointed Amila over Crispin. Yeah, now the same there. Of course, Amila, they wanted to give Amila a new contract, but the news came out, and then of course there was some kind of a, you know, from Exco member and the women's committee head Velanka. There was some kind of a protest, and then they dropped the idea to give Amala a new contract. Now they are giving Crispin a temporary extension for the next few months to play that FIFA series against Kenya and hopefully likely on Australia, and then SAF Championship. Again, the long-term planning is not there. That's a major problem, right? If Crispin, you are a long-term coach, then why replace him in the first place? But then now also, if you replace and now you आपसे गलती हो गया मान रहे हो, तो आप उसको long-term contract क्यों नहीं दे रहे हो ना? At least give him 1 year contract. You know, what's this 3 months, 4 months? आप कोचेस को भी अनसर्टेन कर रहे हो, प्लेयर को भी अनसर्टेनिटी का पार्ट बना रहे हो. You know, and I think what kind of processes have been followed again to appoint him, I don't know. Have been there interview with other people, other coaches, I don't know. So again, you know, this technical committee, they are great. They used to be great players, but I don't think they are a great technical, administrative or technical people who can take decision. We have seen their blunders of decision they have taken in last few years in terms of coaching appointment, in terms of national teams. So, you know, but hopefully Crispin got his due, and, you know, he leads India to the foreseeable and future and win the trophies जो दो ट्रॉफी लाइन पे हैं. आगे बढ़े तो मिक कप में मिनर्वा अंडर 15 एकेडमी टीम खेल रही थी. हमने उस मैच के वॉच अलॉन्ग भी किए, 2 मैचेस के ग्रुप स्टेज में काफ़ी अच्छा किया. देन राउंड ऑफ 16 में लिवरपूल एफसी को, जो मैच हमने वॉच अलॉन्ग के साथ में देख रहे थे, 6-0 हराया. क्वाइट अ डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस. उनके राज सिंह ने एक हैट्रिक मारी उस मैच में. पर उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स में जाके 2-1 यूई करके एक नया टीम है, फिगुएस, लोकल टीम है जी, वहाँ की लोकल टीम है, तो उनसे हार गए. बट ओवरऑल अ गुड परफॉर्मेंस बाय देम. ओवरऑल सोशल मीडिया पे बहुत सारा अच्छा फीडबैक मिला है, मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कवर किया है, एंड बट स्टिल डिसेंट टूर्नामेंट, डिसेंट परफॉर्मेंस.
सी अभी तक मैंने बोला नहीं है, बट यू नो पहली बात ये है कि ऑफ कोर्स परफॉर्मेंस वाइज द वे द बॉयज प्लेड, यू कैन सी Gegenpress. you can see they were coached well. They have been preparing for this tournament a lot, and the previous tournament, the invitational tournament they have played, and of course they defeated Liverpool. But थोड़ा सा ना reality check भी बहुत ज़रूरी है in terms of, because I could see fans saying oh they will be, you know, see पहले 2-3 बातें डिस्कस करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा लंबा चलेगा वो करते हैं. This is not first time our Indian team have defeated a Premier League European, club yeah. or a European club or a big team, you know, to go to आप सर्च भी कर सकते हैं, but let me give little bit context. For example, India under 20 team defeated Argentina under 20 team with the World Cup winning coach, you know, with Anwar Ali Clooney, scoring the free kick, you know. We have seen Reliance Foundation under 15 team defeating Manchester United under 14 team in Bombay in Next Generation Cup. By the way, and that United team have some great talent, you know, and it was known that they are under 14 and Reliance Foundation were under 15. Then we have seen in Next Generation Cup again, Punjab under 21 team going in UK, London, defeating some Aston Premier League Villa. team and Aston Villa under 19. You know, where we've seen where Kipjan and all, you know, doing they so were well doing well, yeah. and defeating these team. And then there are so many of these examples in last 20 years where we have defeated. So it's not that the first time that, you know, oh, it's a big club, you know, Indian team or defeated. So that's one thing. Second thing is regarding Liverpool, because there has been some clarification by the Liverpool journalists to follow their academy teams and all. Of course, in Premier League nowadays, you could see that the best 15, 16-year-old now playing under Are 18. debuting, yeah. They're under 18, you know, and also the first team खेलने तो extraordinary player like Max Dorman, तो उनकी तो बात छोड़ दीजिए. But normally मैं कह रहा हूँ 15, 16 ईयर के जो talented बच्चे होते हैं वो under 18 टीम का part होते हैं. And then your under 16 team is also there, and then you know जो talented आपके 14, 15 years old होते हैं वो under 16 का part होते हैं. दो ईयर का ब्रैकेट है, मतलब 2 ईयर के पीछे वाले जो And आगे then there is थे. under 15 team, and Liverpool ने इसी टूर्नामेंट में under 16 team भी फील्ड करी थी, and then you know they had under 15 team also playing as Minerva, and you know they have some players from their real actual under 15 team. Then it's a mix of the talent. It's not that we are demeaning their achievement, it's just that कि ओवर द टॉप नहीं जाना है. जैसे मैंने बोला वो अर्जेंटीना का अंडर 20 को हमने हराया. आज आप चेक करो उनके मैनेजर जाके वर्ल्ड कप जीत चुके हैं. यहाँ पे इंडियन प्लेयर्स कहाँ पे है, वो वही प्लेयर कहाँ है, वही टीम कहाँ है, कितने लोग इंडिया खेले हैं क्या नहीं खेले हैं. सेम वे पंजाब वाली टीम या वो रिलायंस फाउंडेशन वाले बच्चे कहाँ हैं. इट्स ऑल अबाउट, इट्स शुड बी नॉट वन ऑफ गेम सक्सेस कि एक मैच हम जीत गए और उस पर सक्सेस बना रहे हैं. आई थिंक व्हाट शुड बी नेक्स्ट स्टेप, कैन दीज बॉयज कम बैक टू इंडिया, प्ले 40 or 50 कॉम्पिटिटिव लीग मैचेस, you know, throughout the year, not just कि एक दिन में 2 मैच खेल रहे हैं. That's not going to help a developer. It's a one off thing, ठीक है, but you know आपको realistic holistic development करना बहुत जरूरी है, you know, in terms of. और ऐसा नहीं है कि ये हम, जैसे मैंने बोला कि हम under 16 level पे Indian team does well. It's last 20 years, you can check records and everything. We have done well. That there's a reason why we have played 5 Asia Cup. Yeah. You know, with under 16 team, you know, in a trot. This is 4th or 5th Asia Cup which Viviano has qualified. तो वो हम age group अच्छा करते हैं, और उसके बाद जब सेम बच्चे अंडर 19 में जाते हैं वही बच्चे स्ट्रगल करते हैं जिन्होंने अंडर 16 टीम को हराया होता है. उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर है, नॉट गोइंग इनटू इट, इंक्लूडिंग एज फ्रॉड, इंक्लूडिंग लैक ऑफ गेम टाइम, यू नो, व्हेन दे आर 16 to 18. बहुत सारे फैक्टर्स है, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज it's a great achievement. You know, they've done well in Mick Cup, you know, defeated Liverpool under 15 team, irrespective of the composition of Liverpool team. But थोड़ा सा हम लोगों को एक रियलिस्टिक अप्रोच भी रखनी चाहिए कि आगे यहाँ से बच्चों का क्या होगा, यू नो. एंड वो ऐसे साल में सिर्फ अगर एक इन्विटेशनल टूर्नामेंट या 6 महीने में एक इन्विटेशनल टूर्नामेंट खेलेंगे तो आप, यू नो, यू विल मेक अ player who will play in a burst of 25 minutes of 30-40 minutes, and when they go for a 90 minutes match they will start struggling, because these invitational tournaments are for these minutes. So you know, hoping that, you know, Minerva also take a approach to this ki can they put these kids into a, you know, proper youth leagues which AFF is organizing, you know, if possible. There is a Reliance Foundation leagues also for schools and the clubs at the under 17 level, and then of course there is RFDL under 21 level, you know, because if they're so good, you know, maybe time for them to have a higher age group and then play these games and regularly, and you know, then hopefully they come to Indian team and do well, you know. Under 17 next batch should consist of these players if they are good as enough. per the coaches, and so वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमको थोड़ा सा, यू नो, रियलिटी चेक करना जरूरी है अपने साथ. एक भावनाओं में बहने की जरूरत नहीं है. As I said, this is not the first time we have Indian clubs or Indian team have done it, a victory like this, but this should not be last time. And you know, it's also
what's after this victory and what these kids get from after this game to develop their football. It's very important. Yep. तो आगे बढ़े तो आपके सैफ अंडर 20 का हमने पूरा सारे मैचेस का वॉच अलॉन्ग किया. फाइनल में 0-0 था, वेंट टू पेनल्टीज, वी लॉस्ट द पेनल्टीज. पर उसमें कुछ बहुत बड़े टॉकिंग पॉइंट्स थे. एक तो सबसे पहला था ड्यूरिंग हाफ टाइम, जैसे ही फुल टाइम हुआ, एवरी हर्डल हुआ इंडिया का, मैनेजर हैड टू आस्क पीपल हु वांटेड टू टेक पेनल्टीज बाय हैंड्स अप. देन उसके बाद 4 प्लेयर कहीं से डिसाइड हुए. 5वें प्लेयर थे सैमसन, जिन्होंने सबसे पहले स्टेप अप किया पेनल्टी लेने के लिए, और उन्होंने पेनल्टी मिस करी. फिर इवेंचुअली आपके गोलकीपर भी डाउन हुए, जो कि रूल था कि आप अगर इफ योर गोलकीपर गेट्स इंजर्ड ड्यूरिंग अ पेनल्टी शूट आउट यू कैन सब्स्टिट्यूट इट. वहाँ पे नहीं अलाउ हुआ. ये हमारे जो बैकअप गोलकीपर थे उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया, और सॉर्ट ऑफ न्यूज़ भी बनी, बट नॉट दैट बिग ऑफ अ न्यूज़, बिकॉज उससे पहले भी सूरज मैच में कम से कम 3 बार ट्रीटमेंट ले चुके थे. तो द कॉल शुड हैव बीन मेड बाय द टीम बिफोर दैट कि आपके सब्स्टिट्यूट्स बचे हुए थे 4, आप सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, आपने नहीं किया. एंड पेनल्टी आपके स्ट्राइकर ने मिस करी, हु वन द ओमान ने. See, before the tournament started, I didn't have a good feeling, and we did all the watch along when the group stage matches हो रहे थे. तो मैं यही कह रहा था यार, पाकिस्तान बांग्लादेश से नहीं हारना, भले ही आगे टूर्नामेंट का देखा जाएगा, पाकिस्तान बांग्लादेश से नहीं हारना. और we've seen after Bangladesh winning that game what happened on the ground, what happening on social media in Bangladesh, the way they celebrated that victory. It's a huge moment for them, but Mahesh Gawale and his coaching staff did not had ideal जिस तरह की प्रिपरेशन हुआ एज अ कोचिंग स्टाफ उन्हें करनी चाहिए, उन्होंने करी नहीं. सिलेक्शंस के ऊपर सवाल थे, इंजरीज के ऊपर सवाल थे. फॉर एग्जांपल एक सिलेक्शन जो मैंने कंफर्म किया है, गुरनाज वाज नॉट इंजर्ड. I still don't know after that performance in the first game against Pakistan. Pakistan, right? First game. How and why he was not played further down? 10 मिनट आपने उनको इंजरी टाइम दिया था बेंच से अगेंस्ट भूटान in the semi-final. Finally, we did not play a single minute, and your midfield was over the top. आप सिर्फ बॉल कंटिन्यू रख नहीं रहे थे, कुछ कर नहीं रहे थे. आपने चलो डैनी मिते की इंजरी का तो चलो नोन फैक्ट है. I thought Gurnaj was also injured. He was not injured, and then whatever tactics and all, it was horrible. Technical committee, if you are there, if you are watching, इसका रिव्यू मैं जानना चाहता हूँ. आप क्या रिव्यू करते हो उसका जी, क्या आप एक्शन लेते हो उस चीज़ के ऊपर, मैं भी वो जानना चाहता हूँ. इन टर्म्स ऑफ आस्किंग प्लेयर फॉर द पेनल्टी शूट आउट, अगर आपकी स्ट्रेटेजी फ्रॉम फर्स्ट मिनट यही थी कि पेनल्टी शूट आउट में जाना, तो आपको तो आपके 10 के 10 पेनल्टी शूट आउट टेकर्स रेडी होने चाहिए थे आपके मन में. एंड आप सब्स नहीं कर रहे हो, आपको पता है 90 मिनट का मैच है. आप एक लॉटरी सिस्टम, पेनल्टीज इज लॉटरी. अगर आप जीत भी जाता तब भी मैं यही बोलता कि लॉटरी से हम जीते हैं. एंड ये कोई ट्रॉफी जीत के हम कोई बहुत मतलब फुटबॉलिंग नेशन नहीं बन जाएंगे, कुछ नहीं बन जाएंगे, बट एटलीस्ट रिस्पेक्ट रहती. बट एटलीस्ट परफॉर्मेंस अगर अच्छी होती और आप पेनल्टीज में हार जाते, 3-3 ड्रॉ होता, 4-4 ड्रॉ होता, तो वीड हैव रेज आवर हैंड, ओके वी वर अनलकी. बट आपकी परफॉर्मेंस इतनी वाहियात, टैक्टिक्स इतनी वाहियात, सिलेक्शंस के ऊपर सवाल है, फिर इन गेम मैनेजमेंट इतनी बकवास है. उसके बाद अगर आप उम्मीद कर रहे हो कि हम आपके साथ सिंपैथी देंगे और बोलेंगे ओ वी वर अनलकी, पेनल्टीज शूट आउट में हार गए, नो. We lost the game. The moment game was started, the mentality of our players, the coaching staff were not there. Bangladesh, the crowd was there. They wanted to win that. We saw nearly 400k people watching that game. 95% more than from Bangladesh. Bangladesh watching that game, and they were desperate for that trophy, and they deserve to win that trophy. Even if they win the penalties, I will say they're desperate to win the penalties because the trophy, because हमारी टीम ने हमने जब पेनल्टी के लिए खेलना चालू किया, वो तो अगर आप अभी भी बोलोगे एक ढंग का कोच होता तो 90 मिनट में इंडिया मैच जीत जाता. बिकॉज ढंग का सिलेक्शन होता 90 मिनट इंडिया मैच जीत जाता. ये पेनल्टी में जाता ही नहीं. बांग्लादेश ने कुछ खास किया नहीं. एग्जैक्टली, हमें बाहर से दिख रहा था. बांग्लादेश पहला भी जो उन्होंने मैच हमारा हुआ ग्रुप स्टेज में, उसमें भी उन्होंने सेट पीस से गोल मारा था. दे वर ट्राइंग टू गो फॉर द सेट पीस एंड ट्राइंग टू जस्ट यूज द फिजिकलिटी. पूरे मैच में उन्होंने वही किया. इफ वी प्लेड आवर बेस्ट प्लेयर्स, kept the ball on the pitch rather than just going for long ball, we should have won the match in 90 minutes and lifted that trophy, but that did not happen. Again, managers call whatever it was, but यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को लेनी पड़ेगी. अगर आप अंडर 20 वुमेंस में एमिलिया को आपने पिन पॉइंट कर दिया, उनकी गलती थी सीनियर टीम में, तो यहाँ पे भी किसी की तो गलती है जहाँ से आप ये मैच हारे, बिकॉज इन दिस टूर्नामेंट यू शुड नॉट हैव लॉस्ट. आगे बढ़ते हैं. तो अब मेंस टीम की बात करें तो यूनिटी कप का सब कुछ कंफर्मेशन अब हो गया है. मई 26 से मई 30 में होगा लंदन में, ऑफ कोर्स फीचरिंग नाइजीरिया, इंडिया, जमैका एंड जिम्बाब्वे. तो 4 अच्छी टीमें हैं. कहाँ पे होगा? ब्रेंटफोर्ड के जीटेक कम्युनिटी स्टेडियम में होगा. ओपनिंग मैच आई एम प्रीटी श्योर इज वर्सेस नाइजीरिया वर्सेस इंडिया. ये श्योर हो गया अभी, आई थिंक 90% कंफर्म्ड है.
अच्छा इंडिया शुड बी लास्ट स्पॉट टिप, मतलब रैंकिंग में लास्ट टीम होंगे हम। ए वर्सेस डी होगा तो इंडिया तो 90% ये है। एंड लास्ट आपके चैंपियंस भी नाइजीरिया ही है जो 2025 में जीते थे जमैका को 5-4 पेनल्टीज पे हरा के। सब कुछ कंफर्म्ड है। लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज मैचेस, big matches. I don't expect Nigeria की first team to Osimhen and everybody to come, but still big matches for Ryan Williams or hopefully a couple of the under 23 lads to go there and make their say in this team, make their stay in this team. I will say, you know, why not make majority of under 23 kids go and the जो exposure, आपकी एशियन गेम्स वाली टीम जाएगी, जो तीन एक्सपोजर उनको मिलेगा वहां जाके, आप एक एक्सपोजर 34, 33, 30 साल के प्लेयर को दोगे या 20, 21, 22 साल के प्लेयर को एक्सपोजर देना चाहोगे? I still feel, you know, maybe send Nausad Musa as a team with the 3 senior players to Unity Cup and then for the 2 friendly जो रवांडा है वहाँ आप खालिद जमील उनकी टीम को भेज दो। जी हाँ, तो Because that will give you under 23 best preparation for the Asian Games, you know, and I think our under 23 team with 3 quality senior players like Ryan Williams or like Gurpreet or Anwar Ali or Apuya, whoever you want to add, or Changte for example, if you want to add, could give fight to any team, you know, in terms of with good preparation after having good ISL season under the belt. मेरी वो ये तो ख्वाहिश ये है, पसंद ये है, बट होगा नहीं, वो जाएंगे खालिद जमील एंड बॉयज ही, बट आइडियल केस वो होना चाहिए था जी। बट आ गुड गेम्स कंसीडरिंग वी डोंट हैव नथिंग टू प्ले टिल नेक्स्ट ईयर नवंबर, सो ऐसे चीज़ें जितनी अपॉर्चुनिटी मिले उनको दोनों हाथ से लपक के ले लेना चाहिए। जी, आपने ऑलरेडी बात करी दी, तो इंडिया आर ऑल्सो लाइकली टू प्ले युगांडा में ही इन जून विंडो। 2 मैचेस की बात हो रही है अकॉर्डिंग टू स्पोर्ट्स स्टार। तो अगेन गुड प्रिपरेशन, मतलब प्रिपरेशन हम किसी चीज़ की कर नहीं रहे, बट एटलीस्ट वी आर प्लेइंग समथिंग। Yeah, and Indian team in general didn't travel much in terms of friendlies in recent games, so good to see. Let's see, you know. I think again, मेरा confidence इसलिए नहीं आ रहा because I am not sure Khalid Jamil is the man to take us forward till next year November qualifiers. अगर आप इतने सारे अभी यही मैचेस आपको आंसर दे देंगे, यही 6 मैचेस, अरे मतलब क्या 5 मैचेस, मतलब क्या आंसर रह गए हैं बताओ, क्या क्वेश्चन है आपके दिल में? मेरे दिल में अभी भी ये क्वेश्चन है कि क्या पता, मैं आई एम टेकिंग खालिद साइड ऑन दिस, क्या पता उनका कॉल ये था कि मैं सीनियर प्लेयर के साथ ही जाऊं, तो क्या पता हम गलती से क्वालिफाई कर जाएं, बिकॉज कुछ ही मैचेस बचे थे। अब क्या पता वो चांस दे दे यंगस्टर्स को। मैं ये कह रहा हूँ, वो मैं सिलेक्शन की कॉल ही नहीं कर रहा हूँ, पर ऑन द पिच जो मैं देखने को मिल रहा है, ऑन द पिच का मैं डिफेंड नहीं कर सकता, बट अगेन दैट वाज अगेन जिन्होंने अपॉइंट किया उनसे जाके पूछिए, उनको पता था व्हाट दे आर अपॉइंटिंग, व्हाट द प्ले स्टाइल इज एंड व्हाट एवर इट विल बी। तो इस इन गेम से आंसर मिल जाए या कभी ना मिले, 136 फीफा रैंकिंग आ गई है, 5 रैंकिंग आफ्टर लास्ट विन ऊपर गई है, फीफा रैंकिंग और ऊपर जानी पड़ेगी बिकॉज नेक्स्ट ईयर के ड्रॉ के लिए। आइडियली अगर वहाँ 90s और 100 के बीच में आ जाए तो इट विल हेल्प अस इन द नेक्स्ट ईयर फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स जो होगा नवंबर अक्टूबर में होगा, जब भी होगा सितंबर में होगा आई थिंक, तो अक्टूबर में राउंड 1 होता है और नवंबर में राउंड 2 किक ऑफ होता है, क्योंकि राउंड 1 तो नॉकआउट होता है, प्ले ऑफ, तो उस पर तो हम रहेंगे नहीं, वो तो बॉटम ऑफ एशियन टीम्स के लिए होता है, बट उसमें भी शायद चेंजेस देखने को मिले विद एशिया कप नाउ नॉट टेकिंग प्लेस इन 2031। AFC क्या करता है नेवर नो, AFC नेशन लीग्स भी आती है नेवर नो, बट होपिंग। और उन्होंने 27 वाला भी जो अभी उनका ड्रॉ था वो भी पोस्टपोन कर रखा है, वो कब होगा वो भी नहीं पता, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अच्छी बात है, पोस्टपोन नहीं करते। हाँ एग्जैक्टली, तो अभी भी नहीं है, तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, यू नेवर नो क्या होने वाला है। क्वालिफाई नहीं हुए हैं तो मैंने कहा नहीं हो, अच्छी बात है, मतलब सदमा तो नहीं लगेगा पूरा एशिया फुटबॉल के लिए, बट जस्ट जोकिंग, फुटबॉल शुड गो ऑन एंड एवरीथिंग, बट यू नो मेरे दिल में कोई क्वेश्चन नहीं है मतलब खालिद के लिए। आई रिस्पेक्ट हिम, ही इज इंटरनेशनल एंड ऑल, for all the games when he came he had full my support. I thought he could bring a result, he could have taken it to Asia Cup and all, but that didn't came. थोड़ी मेंटालिटी चेंज हम एक्सपेक्ट की थी, वो हुई नहीं, सेम ही डिफेंसिव माइंडसेट है, लॉन्ग थ्रो इस पे खेल रहे हैं अभी भी। जो हमने हांगकांग को हराया उसमें भी एक गोल आपका सेकंड गोल लॉन्ग थ्रो से ही आया डायरेक्टली इन अ वे, तो वो सारी चेंजेस चाहिए अभी भी। अब आई डोंट नो क्या होगा आगे क्या नहीं होगा। 23 टीम की हमने बात करी इतनी देर से, तो अंडर 23 टीम भी ट्राई सीरीज खेल रही थी। पहला मैच हम बहुत अच्छा जीते, दूसरा मैच जो 1 ऑफ फाइनल था अगेंस्ट पाकिस्तान, लॉन्ग शॉट एक परमवीर के शोल्डर ने हेल्प किया उनको गोल मारने की, उसके बाद हम गोल मार नहीं पाए, रेफरिंग डिसीजंस वर गॉड डैम ऑफुल, हमने उसका पोस्ट मैच भी किया, वॉच अलॉन्ग भी किया। स्टिल अंडर 23 टीम दिखा रही है साइंस की अटैकिंग फुटबॉल, मैनेजर इज गुड, योर मिडफील्ड इज गुड, दे शोइंग साइंस दैट दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। Crystal John was the referee, no? Yeah, of course. And the kind of injury time and the decisions he gave has shown why the Indian referees are not rated anywhere near in Asia. Why not Indian referees are called by other countries or AFC for any games and all. We have हमारा football pathetic है, referees are same as pathetic as possible. If not less. If not less. In terms of performance, I think
you could see, you know, Nausad Musa trying new players. We see him playing Lalat Hakima and Edison against Bhutan, you know, for example, giving chance to Ibn Das in both the game. So his Atsal also his came on squad pool जो है वो बढ़ता जा रहा है day by day, and I think it's good to see. Of course, not winning against Tajikistan will hurt his team, but I think I don't have any complaint because performance, I could see the pattern of plays. Even with the 3-day camps, even the new players coming in, they're still trying to play same. They're still trying to keep ball in the midfield. So I think that will come. But the loss, I think so, is good in the way कि अब manager को भी पता है, he also changes formation to a 4-4-2 when we were losing in the 60th minute. Manager को भी पता है, players को भी पता है कि if we need to win, we need to keep the ball on the ground. Long ball जाके भी आप मैच नहीं जीतेंगे तो hopefully good गए थे आप, उस दिन नहीं जीते. बैटल सारी हारने लगे और then Tajikistan came and started attacking you more. Exactly. फिर end to end game हो गया था. हाँ, तो exactly good experience for the team. Good experience, and I think good reality check also for them. As I said, but I hope their preparation for the Asian Games, if you're going, you know, hopefully likely to be going to the Asian Games, should be a solid. Because I think that's the only competition this batch has to play. पहले से प्रिपेयर करके चलना कि क्लब के ये प्लेयर आएंगे. अगर एशियन गेम्स आपके सीजन के बीच में हो रहा है तो गलत स्टेटमेंट मत दे देना कि ये प्लेयर्स आएंगे फिर वो प्लेयर ना आए, ये मैनेजर लीड करेगा फिर दूसरा मैनेजर लीड करे. होपफुली प्रिपरेशन सब कुछ बन के चलेगी. आगे बढ़े तो ISL का गेम वीक 7 चल रहा है. रिव्यू इस बार नहीं कर रहे हैं बिकॉज 2 मैचेस अभी भी बचे हैं. एंड देन अगले कुछ दिनों के लिए स्टूडियो में पीपल आर नॉट देयर टू शूट. बट स्टिल कुछ मैचेस की बात करें तो जो बड़े इस समय हो गए हैं और बड़े कॉल्स हुए हैं. जमशेदपुर एट होम 1-1 अगेंस्ट मोहन बगान. मोहन बगान जिनको टाइटल फेवरेट्स बोल रहे थे, ऐसा लगा था लोगों को पूरे सीजन एक पॉइंट भी ड्रॉप ना करे विद द अमाउंट ऑफ ऑनर्स एंड मनी दे स्पेंड. जमशेदपुर स्टिल देयर. मुंबई सिटी FC गेटिंग रिजल्ट्स, चांगते स्कोरिंग ऑन टॉप ऑफ द टेबल. पर मोहन बगान से शुरू करें तो फैंस हैव ऑलरेडी स्टार्टेड टू टर्न ऑन देयर मैनेजर एज वेल. लोबेरा पे लोग कह रहे हैं कि ही इज गॉन टू अग्रेसिव इन अ वे कि मैं टीम ही चेंज नहीं करूंगा, मैं किसी और को खिलाऊंगा ही नहीं, मेरी यही टीम है, हम इसी से जीतेंगे. तो बैड डिसीजन बाय हिम. Can you imagine that, you know, you winning 1-0 and you just making one sub in the game? Yeah. You know, one sub मतलब उन्होंने जो players आते हैं वही Cummins, Peteros और दीपक टंगड़ी को उन्होंने बुलाया, just made 3 subs. And आपने to imagine that what kind of players you have not called upon. And there is Sahel Abdul Samad on the bench who has that creativity to spark that एकदम से movement बना के goal करना. You know, there is of course Kian, which they brought it back from Chennai. Winger, can dynamic, have scored goals in Kolkata Derby and all in past. And then there is of course Sohail Ahmed Bhatt in the bench, doing well under 20 team, looking sharp, scoring goals and all. I still don't understand Lobera's mindset on that regard. That आपके पास ये players हैं, आपने 3 subs किए हैं. Why don't introduce Sohail and you know Sahel, considering कि उनको भी अपने आप को prove करना होगा. They will be eager, they will put more energy in terms of playing into the last 10-15 minutes, and you might score a second goal, right? You are leading 1-0 till 90th minute, आप injury time पे आप goal खा गए. तो ये वाली लोबेरा के अंदर वो देसी कोच वाला वो आ गया है कि डिफेंड कर लेते हैं जी. गोल मार लिया अब डिफेंड कर लेते हैं, गोल मार लिया डिफेंड कर लेते हैं. आई थिंक दैट्स वेयर लोबेरा हैव टू चेंज हिज माइंडसेट. यू नो, इट्स अ मोहन बगान, it's one of the costliest team in Indian football, you know, ever. If you see उनके जो बजट्स हैं, जिस सैलरीज वो देते हैं, उनकी कोई पे कट्स नहीं हुई, सारे फॉरनर्स हैं, सब कुछ है. एंड उसके बाद टू हैव दैट माइंडसेट, यू नो, कि लेट्स डिफेंड 1-0 लीड, लेट्स नॉट सब्स्टिट्यूट प्लेयर्स. आई थिंक दैट्स वेयर लोबेरा हैज डन मिस्टेक इन लास्ट फ्यू गेम्स. You know, it's not Sohail Bhatt will come and, you know, score a couple of goals, but you never know because you have, you know, Manveer on the playing there. You have Amrit Thapa playing there. You know, Manveer who came off a very good performance in the Indian team debut, assist दिया उन्होंने इस मैच में. But Manveer को as a winger खिला रहे हो, अगर आप Cumming और Dimitros को भी डाल रहे हो, दोनों foreigners को instead of McLaren and Robinho, आप उनको Sohail को बीच में डाल सकते हो ना. Let play Cummins from right and Dimi from left. You know, and what more Sohail have to do to get a playing time. Still 0 minutes. It is shameful considering he is the best Indian striker, centre forward we have. He could score goals. He has, and ऐसा नहीं है कि एक चीज़ है जैसे डेविड लालासंगा ईस्ट बंगाल में है, उसके पास सिर्फ गोल्स है उसको दिखाने के लिए. सोहेल भट्ट के पास ओवरऑल उसकी सेंटर फॉरवर्ड परफॉर्मेंस भी है, लिंक अप प्ले भी है. वी हैव ऑल सीन इट फॉर इंडिया, हिम डूइंग इट एवरी टाइम ही इज वेयरिंग दैट इंडियन जर्सी. एंड आई डोंट नो व्हाट दे नीड टू डू. एंड अब शायद लोबेरा भुगत रहे हैं जो गलती उन्होंने करी है. एंड आई थिंक इट जस्ट दैट कि मेरे ये 11-12 प्लेयर है, मैं नहीं कह रहा हूँ टीम चलाऊंगा. कोई भी लीग
आप बिना स्क्वाड के नहीं जीत सकते। अगर 11-12 खिलाड़ी आपको लीग जिता देते, 15 खिलाड़ी लीग जिता देते, तो आर्सेनल इतना पागल नहीं होता कि हर पोजीशन में 3-3 2-3 प्लेयर इकट्ठे कर रहे थे। सिटी पेप इतना पागल नहीं होता कि हर पोजीशन 2-2.5 प्लेयर उसने रख रखे हैं। You have to trust your squad, and I think, of course, Mohan Bagan's squad, as I said, is one of the costliest, one of the highest paid players in the league. सब कुछ है, तो आप उस बेंच में बेंच में जो प्लेयर हैं जो इस मैच में, डिमी पेत्रोस, दीपक टंगड़ी, जेसन कमिंस, अमीर अनावाडे, कियान, सहल अब्दुल समद, मेहताब सिंह, सोहेल अहमद भट्ट, ये सारे जी मैं बता रहा हूँ लगभग हर आईएसएल टीम के प्लेइंग 11 में जा सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही बोला। बाकी रिजल्ट्स की बात करें तो पंजाब एफसी कमिंग फ्रॉम बिहाइंड, मोहम्मदन एससी को 2-1 हराया, स्टिल मोहम्मदन विदाउट अ विन इन दिस, एंड टफ लक फॉर मोहम्मदन बिकॉज़ रेफरीज डिसीजन वाज वेरी बैड एंड आई थिंक मोहम्मदन डिजर्व टू हैव सम पॉइंट फ्रॉम दैट गेम। आगे बढ़े तो बेंगलुरु एफसी हैव बीटन गोवा 2-0, एंड अगले मैच की बात करें तो केरला ब्लास्टर पे हम आ ही रहे थे। स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली एट होम, second ever home game in ISL history since their rebranding against Kerala Blaster, have lost the game, and Kerala Blaster now sitting with just 1 point. मोहम्मदन SC दिल्ली आपके ऊपर चली गई है टेबल में, एंड पॉइंट से काफ़ी क्लियर हो गई है। बहुत सारे फैंस ने सोशल मीडिया पे दिखाया है अपना गुस्सा, फैंस ने अनफॉलो करना शुरू किया है, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे बहुत सारे फॉलोअर्स लूज़ किए हैं। दे आर कॉलिंग फॉर अ बिग चेंज, मैनेजर चेंज हो गया, परफॉर्मेंस, वी वर इन स्टेडियम फॉर दिस मैच, द परफॉर्मेंस स्टिल नॉट रियली अप टू द मार्क, रेड कार्ड इन द गेम फॉर देम, लास्ट मैन टैकल, SC दिल्ली के मैनेजर को रेड कार्ड मिला, और SC दिल्ली के मैनेजर ने पूरा एक चेंज किया पूरे मैच में, दैट टू इन द 90+2 मिनट, एंड SC दिल्ली डिजर्व टू विन दिस गेम। I think bad planning by Kerala Blaster, horrible planning. The foreigners, useless foreigners, all of them. उससे बेटर फॉरेनर मुझे लगता है केरला के सेवंस में आपको मिल जाएंगे, जैसे फॉरेनर्स उनके हैं। मैंने यॉर्क के लिए, आई एम नॉट डिसिंग हिम बट आई हैव सीन हिम, आई हैव टोल्ड यू गाइस फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, फ्रीलांसर है, फ्री स्टाइलर है, यू नो 15 गोल असिस्ट पूरी लाइफ में किसी प्लेयर को होते, उसके लिए आपने आमीन को दिल्ली को दे दिया, यू नो, एंड ही कम एंड हंट बैक, नहीं मोहम्मद आमीन को आपने दिल्ली को दिया, एंड ही कम एंड हंट बैक टू स्कोर अ गोल अगेंस्ट यू, क्योंकि आप आमीन के गोल्स एंड असिस्ट देखोगे, कंपेयर यॉर्क के गोल्स एंड असिस्ट पिछले 5 सालों में, आमीन के ज्यादा निकलेंगे, यू नो, अगर आप उस तरह देखोगे जो टॉप लेवल गोल एंड असिस्ट है। एंड आई थिंक 2-3 उसमें भी एक पार्ट था जहां पे केरला ब्लास्टर वन अ वेरी गुड फ्री किक, उन्होंने फ्री किक जरूर जीती, पर आपके सेट पीस टेकर फ्री किक पे खड़े हैं, एंड ही इज फाइटिंग विद द कोच कि मुझे फ्री किक लेने दो, योर 1 गोल डाउन एंड योर फॉरेनर इज डूइंग दिस, तो आप कैसे मैच जीतना एक्सपेक्ट कर सकते हो वहां से? आई थिंक दीज रैंडम फॉरेन साइनिंग से बेटर होता है कि केरला अपने 11 डोमेस्टिक देसी प्लेयर से खेल लेता, यू नो, डोमेस्टिक प्लेयर से खेल लेता, आप नोरा को भी रिटेन रखते, आप यू नो आमीन अजहर को भी क्लब में रखते, और आप जाते 11 इंडियन प्लेयर से। आई एम श्योर दैट वुड हैव ब्रॉट बेटर ऑफ दिस क्लब और टीम स्क्वाड देन करंटली। आप एक चीज देखिए जस्ट क्विकली बिफोर वी हैव टू रैप दिस अप, केरला ब्लास्टर्स से दिल्ली के कोच निकले थॉमस, केरला ब्लास्टर से एक और असिस्टेंट कोच निकला जो गया उड़ीसा एफसी, पुरुषोत्तम, राइट, एंड ही इज डूइंग वेरी वेल बाय द वे, हैज अ 5 पॉइंट्स, दिल्ली हैव थॉमस हैव 5 पॉइंट, बोथ ऑफ देम। देन केरला ब्लास्टर्स से नोरा फर्नांडिस दिल्ली गया, केरला ब्लास्टर्स से अजहर एंड आई मीन दिल्ली आए, ठीक है, तो ये 3 प्लेयर केरला ब्लास्टर्स से आए, एंड यू नो आप देखोगे केरला ब्लास्टर्स के अगर आप प्लेयर्स भी देखते हो लोकल, आई थिंक आई एम नॉट श्योर इन स्क्वाड प्लेइंग 11, I am sure Delhi had more Kerala-ite players, Kerala-based players than Kerala Blasters. They have Sunny, they have Alex Saji. You know, squad की बात नहीं कर रहा, playing 11 की बात कर रहा हूँ. And then they have Azhar on the bench, you know, and Alan Saji on the bench. तो and Sunny played very well. Amin played very well. You know, Alex Saji played decently, okay. You know, but I think so. Gogo की बात करनी चाहिए. The right wing back option. Delhi up and down all the time, technically brilliant. असिस्ट जो दिया वहां पे हमारे जो इंडियन टीम के नेशनल टीम के फॉरवर्ड्स है वो जाके अंधों की तरह पास करते, he took the ball by line, beat the goalkeeper, ओपन गोल दिया, एंड इससे ज्यादा XG 0.99 XG की गोल दे दिया आपको। उसकी सैलरी मैं अगर किसी को बता दूं तो आप यकीन नहीं मानोगे कि मतलब किस सैलरी में वो खेल रहा है इन टर्म्स ऑफ एट स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली एंड एवरीथिंग, बट दैट शोज जरूरी नहीं है आपको ज्यादा पे कर रहे हो तो आप ज्यादा बड़े प्लेयर हो, इट्स फॉर गुड प्लानिंग एंड ऑल। एंड एक और चीज मैं हाईलाइट करना चाहता हूं कि थॉमस के ऊपर उनको रेड डबल येलो बना हुआ, आई थिंक दिल्ली वांटेड टू विन दिस गेम अ लॉट, एंड बिकॉज़ दे हैड दिस, इट वाज अ रेलेगेशन डर्बी इन अ वे, नहीं रेलेगेशन डर्बी, बट आई थिंक देयर वाज समथिंग टू प्रूव इन टर्म्स ऑफ कि वहां से छोड़ के आए हैं कोच, कुछ प्लेयर्स छोड़ के आए हैं, एंड द परफॉर्मेंस ने दिखा दिया, पार्टिंग अवेज यू नो बिटवीन आई मीन अजहर एंड केरला ब्लास्टर वाज नॉट डन, did not happen at a good note, I think so. मुझे जो लग रहा है फैंस ने भी पॉइंट आउट कर दिया, फैंस ने पॉइंट आउट किया, बट Amin has not said anything bad about the club. No celebration as well. हाँ, हमारे स्टूडियो में भी आया, उन्होंने क्लब के लिए
तारीफ ही करी, अपने पोस्ट मैच का मैं वीडियो देख रहा था उसमें भी तारीफ करी, बट आई थिंक देयर इज समथिंग व्हिच हैपेंड, आई डोंट नो व्हाट, बट kids still respect the club, but As they should. you know, it should be, but Kerala Blaster need to, you know, buckle up. बिकॉज अगर इस गेम वीक में अगर मोहम्मडन समहाउ वो विन जीत लेती और आप यहाँ पे मैच हार गए तो यू आर डेड बॉटम द टेबल विद 1 पॉइंट, और वो अभी भी हो सकता है, आपको अभी भी मोहम्मडन को खेलना है। मोहम्मदन का एक गेम इन हैंड है, केरला के साथ में मोहम्मदन के 6 गेम्स हैं। एग्जैक्टली तो अभी आपको वो गेम भी खेलना है, आपके फैंस आपको बाइकआउट कर रहे हैं, तो बैड टाइम फॉर केरला ब्लास्टर। और केरला ब्लास्टर और मोहन बगान की बात कर रहे हैं तो आगे बढ़े तो उन्होंने भी 30 लाख जो बचे हुए थे, फाइनल क्लब टू पे देयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, डेडलाइन एक्सटेंड हुई, दोनों क्लब्स ने पे कर दी है। टेंडर की अपडेट बात फाइनल करेंगे, स्टेटस क्या है क्या नहीं है, और वीडियो खत्म करेंगे। अगेन टेंडर अपडेट इन द 10,000 वीडियो वी आर डूइंग। सो एक्सको के पास टेंडर गया था, तो एक्सको के पास टेंडर गया, क्लब्स ने भी डिमांड लेटर लिख दिया था एक्सको की मीटिंग से पहले कि हमें प्रेजेंटेशन देखनी है दोनों ही बिडिंग पार्टी से, एंड हमने अब तक टेंडर डॉक्यूमेंट देखा ही नहीं है, आप हमें कह रहे हो कि बिड एवेलुएट करो या अपने ओपिनियन दो, पहले हमें टेंडर डॉक्यूमेंट तो आप देखने को दीजिए, यू नो। एंड उसके बाद डिसाइड ये हुआ था कि एजीएम के पास जाएगा ये फॉर अ वोटिंग और फॉर यू नो, या तो वो करने के लिए सेलेक्ट फाइनलाइज करने के लिए, नॉट फॉर वोटिंग, एंड क्लब्स को प्रेजेंटेशन दी जाएगी। अभी तक प्रेजेंटेशन हुई नहीं है। What I heard that Genius Sports की presentation might be scheduled in next few days. Nothing on fan code yet. So exactly बताना कि कहाँ है क्या है कोई पता नहीं, because I think AIFF looks like wants to make Genius Sports a preferred bidder. Then that's give them 45 days. That is very clear. That's give them 45 days to negotiate and everything, to plan everything and to take the talks to the next stage. तो वहाँ पे बात अटकी हुई है, and clubs का opinion, because आई थिंक जो क्लब्स का मुझे लगता है सोच ये है कि उनका दोनों ही मॉडल में फायदा किसी में भी नहीं हो रहा है, बट आई थिंक फैन को लॉस हो रहा है, लॉस कम है, बिकॉज वहाँ पे चांसेस पैसे बनाने के हैं, चाहे थोड़े बने पर हैं, कंसीडरिंग एक और चीज है क्विकली मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, रोल ओवर लॉसेज है इसमें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीनियस स्पोर्ट्स हूँ, मैंने 60 करोड़ का मैंने अगर पहले साल दिया हूँ सीजन बजट, तो मेरे अगर पहले साल मैंने सिर्फ 20 करोड़ रेवेन्यू बनाया है, तो अगले साल मेरा ये 40 करोड़ ऐड हो जाएगा मेरे बजट में। तो मुझे क्लब्स को अगर देना होगा तो मुझे 100 करोड़ से ऊपर बनाना पड़ेगा, तब मैं क्लब को दूंगा। तो रोल ओवर लॉसेस हैं हर साल इस टेंडर में, तो विच मींस जितना हायर है, जितने वो कम रेवेन्यू जनरेट करेंगे ईयर 1 में, ईयर 2 में आपकी वॉल और ऊपर चली जाएगी टू मेक रेवेन्यू, ईयर 3 में और ऊपर चली जाएगी। तो लोग ये कहते हैं लॉन्ग टर्म में रेवेन्यू बढ़ जाएगा, मुझे लॉन्ग टर्म में ये हायर रख के रेवेन्यू बनने की चांसेस थोड़े कम है। तो अगेन यू नो पूरा इकोसिस्टम बैलेंस आउट करके चलना चाहिए एएफएफ को, आईएसएल क्लब्स को, कि वहाँ पे एक प्रॉफिटेबिलिटी ना आए पर सस्टेनेबिलिटी तो आ सके, ताकि यू नो जो ब्रॉडकास्टर हो भी सस्टेन कर पाए, क्लब्स भी कर पाए, एएफएफ भी कर पाए, बट वो अब इनके बीच में कोऑर्डिनेशन है नहीं। एंड ये विद रोल ओवर लॉसेज, अगर लॉसेज रोल ओवर हो रहे हैं एवरी ईयर, आई डोंट थिंक अगर जीनियस स्पोर्ट्स आता है तो क्लब शायद अगले 10-15 साल में कोई पैसा सेंट्रल पूल से बनाने वाले हैं। तो अभी के लिए तो इतना ही है। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द वीडियो, दैट इज इट फ्रॉम आवर साइड एंड पीस।